नमस्ते बच्चों, लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा और आप सभी का आज के हमारे सैटरडे स्टोरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला सत्र जरूर देखा होगा और आपको वो पसंद भी आया होगा। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। आज फिर एक बार हम मिलने वाले हैं अपनी दोस्त रिंकी से। आज रिंकी को एक नए राज्य के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अरे लेकिन ये राज्य कौन सा होगा भला? तो चलिए उस राज्य के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सैटरडे स्टोरी सेशन। रिंकी, क्या तुमने कभी ऐसी जमीन देखी है जो रात में चांद की तरह चमकती हो? टीचर, चांद जैसी जमीन? ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या तुमने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहाँ अब भी शेरों की दहाड़ गूंजती है? सच में टीचर? हाँ, और बस इतना ही नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ रेगिस्तान भी है और समुद्र भी, जहाँ मंदिर है जो सदियों से खड़े हैं और मूर्तियाँ जो बादलों से बात करती है। टीचर, ये जगह कौन सी है और क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं। ये कहानी है गुजरात की, भारत के पश्चिम में बसा एक रंग बिरंगा राज्य, जहाँ के कच्छ का रण, सफेद नमक का चमकता रेगिस्तान, जहाँ गिर जंगल में रहते एशियाई शेर, दुनिया में अब सिर्फ यही, जहाँ जन्मे थे महात्मा गांधी और जहाँ खड़ी है सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। तो चलिए देखते हैं। गुजरात, द लैंड ऑफ लायंस, कलर्स एंड करेज। Gujarat is a colorful state in western India, where desert, salt plains, green forest, and the Arabian Sea come together to create a land full of beauty and life. In the northwest lies the sparkling Run of Kutch, a vast white salt desert that glows under the moonlight. In the south, the Gir forest is home to the world's last remaining Asiatic lions. Gujarat's landscape is as diverse as its people, dry in some places, green in others, but always vibrant. This state is deeply connected to India's history. It is the birthplace of Mahatma Gandhi, who led India's freedom struggle with truth and non-violence. The Sabarmati Ashram in Ahmedabad shows how he lived simply and wisely. Gujarat was also the home of Sardar Vallabhbhai Patel, whose giant statue, the Statue of Unity, is the tallest in the world. Gujarat is filled with ancient temples and architectural wonders. The Somnath temple, standing by the sea, is one of the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva. In Dwarka, Lord Krishna's temple welcomes pilgrims across India. The beautifully carved Rani Ki Vav step wall in Patan and forts in Junagadh tell stories from centuries ago. People here speak Gujarati, wear bright clothes and celebrate with joy. During Navratri, people dance the Garba and Dandiya Ras in colorful outfits. Makar Sankranti fills the sky with kites and the air with kai poche. Diwali, Holi, Janmashtami and Uttarayan are celebrated with sweet song and sparkle. Gujarat's food is full of flavor. Thalis include rotli, kadhi, undhiyo and farsan, served with sweets like shrikhanda and basundi. Snacks like dhokla, phapda and jalebi are loved by all. From Asiatic lions to salt deserts, from temples to textile mills, Gujarat is a place where traditions and progress go hand in hand, always full of warmth, colors and stories to tell. टीचर, ये तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन क्या आप हमें इसे हिंदी में भी बता सकते हो? हाँ रिंकी, बिल्कुल। मैं तुम्हें ये कहानी हिंदी में भी बताऊंगी और साथ ही इस कहानी में आने वाले कठिन शब्द और उनके अर्थ भी समझाऊंगी। ठीक है? अरे वाह टीचर, ये तो सबसे बढ़िया है। चलिए, गुजरात, द लैंड ऑफ लायंस, कलर्स एंड करेज, यानी कि गुजरात, शेरों, रंगों और साहस की धरती। Gujarat is a colorful state in western India,
where desert, salt plains, green forest and the Arabian Sea come together to create a land full of beauty and life. गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित एक रंग बिरंगा राज्य है, जहाँ रेगिस्तान, नमक के मैदान, हरे भरे जंगल और अरब सागर मिलकर एक सुंदर और जीवन से भरपूर भूमि बनाते हैं। In the northwest lies the sparkling run of Kutch, a vast white salt desert that glows under the moonlight. और उत्तर पश्चिम में चमकता हुआ कच्छ का रण है, एक विशाल सफेद नमक का रेगिस्तान जो चांदनी में चमकता है। In the south, the Gir forest is home to the world's last remaining Asiatic lions. और क्या आपको पता है कि दक्षिण में गिर का जंगल है, जो दुनिया के आखिरी बचे एशियाई शेरों का घर है। Gujarat's landscape is as diverse as its people. Dry in some places, green in some others, but always vibrant. गुजरात का भूदृश्य इसके जनता की तरह ही विविध है, कहीं सूखा, कहीं हरा भरा, लेकिन हमेशा जीवित। This state is deeply connected to India's history. It is the birthplace of Mahatma Gandhi, who led India's freedom struggle with truth and non-violence. और ये राज्य भारत के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। The Sabarmati Ashram in Ahmedabad shows how he lived simply and wisely. अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम दिखाता है कि वे कैसे सादगी और बुद्धिमत्ता से रहते थे। Gujarat was also the home of Sardar Vallabhbhai Patel, whose giant statue, the Statue of Unity, is the tallest in the world. गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी घर था, जिनकी विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात इज फिल्ड विद एंशिएंट टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चरल वंडर्स। गुजरात प्राचीन मंदिरों और वास्तुकला के चमत्कारों से भरा हुआ है। सोमनाथ टेम्पल स्टैंडिंग बाय द सी इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा। समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इन द्वारका, लॉर्ड कृष्णा's temple welcomes pilgrims from across India. The beautifully carved Rani Ki Vav stepwell in Patan and forts in Junagadh tell stories from centuries ago. द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर भारत भर से आए तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। पाटन में सुंदरता से तराशा गया रानी की वाव बावड़ी और जूनागढ़ के किले सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं। People here speak Gujarati, wear bright clothes and celebrate with joy. यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और खुशियों से त्योहार मनाते हैं। During Navratri, people dance the Garba and Dandiya Ras in colorful outfits. नवरात्रि के दौरान लोग रंगीन पोशाकों में गरबा और डांडिया रास नृत्य करते हैं। मकर संक्रांति fills the sky with kites and the air with कायपोचे। मकर संक्रांति के दिन आसमान पतंगों से भर जाता है और हवा में कायपोचे की आवाज गूंजती है। दिवाली, होली, जन्माष्टमी and उत्तरायण are celebrated with sweet songs and sparkle. दिवाली, होली, जन्माष्टमी और उत्तरायण मिठाइयों, गीतों और चमक के साथ मनाए जाते हैं। Gujarat's food is full of flavor. Thalis include rotli, kadhi, undiyo and farsan, served with sweets like shrikhanda and basundi. Snacks like dhokla, phapda and jalebi are loved by all. यानी कि गुजरात का खाना स्वाद से भरपूर होता है। थालियों में रोटली, कढ़ी, ऊंधियो और फरसाण होते हैं, जो श्रीखंड और बासुंदी जैसे मिठाइयों के साथ परोसे जाते हैं। ढोकला, फाफड़ा और जलेबी जैसे नाश्ते सभी को बहुत पसंद आते हैं। From Asiatic lions to salt deserts, from temples to textile meals, Gujarat is a place where tradition and progress go hand in hand. Always full of warmth, colors and stories to tell. एशियाई शेरों से लेकर नमक के रेगिस्तानों तक, मंदिरों से लेकर कपड़ों की मीलों तक, गुजरात एक ऐसा स्थान है जहां परंपरा, प्रगति साथ साथ चलती है। ये हमेशा गर्मजोशी, रंगों और कहानियों से भरा होता है। तो बच्चों, अब जब हमने गुजरात की कहानी सुन ही ली है,
तो चलो उस पर आधारित कुछ शब्द देखें और उन कठिन शब्दों के अर्थ भी जान ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा। अगला है स्पार्कलिंग यानी कि चमकता हुआ। अगला है रिमेनिंग यानी कि शेष या फिर बचे हुए। अगला है डाइवर्स यानी कि विविध। अगला है बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थल। अगला है आर्किटेक्चरल यानी कि वास्तुकला संबंधी। अगला है पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री। अगला है कार्व्ड यानी कि नक्काशीदार या फिर तराशा हुआ। अगला है सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाना। अगला है प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। बच्चों चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अभी आपको कहानी को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को सही से भरना है। और हमारे रिक्त स्थान क्या क्या है चलिए देखते हैं। कलरफुल, रन, टॉलेस्ट, गरबा, फ्लेवर, ब्राइट, ट्रेडिशन, ज्योतिर्लिंगास, अहमदाबाद एंड एशियाटिक। Let's see. The first question is, Gujarat is a dash state in Western India. And the right answer is colorful state. Next, the dash of Kutch shines under the moonlight. And the right answer is run. Very good. Third one is the Gir forest is home to the world last dash lions. And the right answer is Asiatic. Next, Mahatma Gandhi was born in dash. Ahmedabad. Next, the Statue of Unity is the dash statue in the world. And the right answer is tallest. Next, Somnath Temple is one of the 12 dash of Lord Shiva. And the right answer is Jyotirlinga. Next, people dance dash and dandiya during Navratri. And the right answer is Garba. Next is Gujarat's food is full of dash. And the right answer is flavor. Next is people here wear dash clothes and speak Gujarati. And the right answer is bride. Next, Gujarat is a land where dash and progress go hand in hand. And the right answer is tradition. वाह बच्चों, आपने तो गुजरात को पूरा ही याद कर लिया है। अब बताओ, अगली बार अगर किसी को इस राज्य में बताना हो तो क्या आप बता पाओगे? हाँ मैम, बिल्कुल। गुजरात तो सच में बहुत ही अद्भुत स्थान है। बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको मजा आया ना? आज के सेशन में हमने गुजरात राज्य के बारे में जाना, हमने उस कहानी का अर्थ समझा, उसमें आए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को जाना और एक छोटी एक्टिविटी भी की। हम हर शनिवार इसी तरह मजेदार एक्टिविटी और नए नए शब्द सीखते रहेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा सैटरडे स्टोरी सेशन।